نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے متعلق ہمیں معلومات حاصل کرنے کی توفیق بخشی، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کورس کی برکت سے ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج حج کورس کا تیسرا اور آخری دن ہے۔ آج کے دن میں انشاءاللہ العزیز ہم حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ مسجد نبوی میں جانے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے ترتیب کیا ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں کے مشہور اور مقدس مقامات کے بارے میں مختصر سی معلومات، تاکہ ان مقامات کی بھی انسان زیارت کرے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہاں پر تشریف فرما اور قیام پذیر ہوتے تھے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کے حج کورس کے عنوان سے۔ پہلی بات، آج حج کورس کا تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ دیکھیے، عمرہ کر لیا گیا، اور ہم جو طریقہ کار بیان کر رہے تھے یہ طریقہ کار ہے حج تمتع کا۔ حج تمتع کا معنی کہ آپ نے پہلے عمرہ کر لینا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ نے حج کرنا ہے۔ آج حج کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حج کے 5 دن ہیں، یہ بات بالکل واضح رہے۔ حج کے 5 دن ہیں: 8 ذو الحجہ، 9 ذو الحجہ، 10 ذو الحجہ، 11 ذو الحجہ اور 12 ذو الحجہ۔ گویا آپ سے کوئی پوچھے کہ حج کتنے دنوں کا ہوتا ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ حج کرنے کے 5 دن ہوتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز ایک ایک دن کی ترتیب کے ساتھ حج کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے، اور آخر میں پھر ایک سرسری طور پر بھی ہم اس کو بیان کریں گے، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک تو تفصیلی طریقہ آ جائے، اور دوسرا سرسری طور پر بھی آپ کے سامنے معلومات آ سکیں۔ 7 ذو الحجہ کو آپ نے احرام کی تیاری کر لینی ہے، یعنی ایک دن پہلے آپ تیار ہو جائیں، ناخن تراشیں، مونچھیں کاٹیں، بغلوں کے بال، زیر ناف بال انسان صاف کرے، غسل کرے، بالکل تیار ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے 8 ذو الحجہ کو مینا میں جانا ہے، وہاں آپ کا قیام 5 دن کا ہوگا، اس لیے آپ نے اپنے آپ کو ایک تو اچھی طرح صاف ستھرا کر لیں، اور حج کے احرام کی تیاری بھی کر لیں، احرام کی چادریں، ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے جوتے، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ وہاں پہنچا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں مینا میں آپ نے وہاں پر خیمے موجود ہوتے ہیں، تو مینا میں آپ نے خیموں میں رہنا ہے، 5 دن رہنا ہے، تو چھوٹا موٹا سامان انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ لے لے۔ مینا میں جو سامان آپ کو انتہائی ضرورت ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بطور لسٹ کے پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مسواک۔ اپنے ساتھ مسواک ضرور رکھ لیں۔ قربانی کا کوپن، 1 عدد چٹائی یا دری ضرورت کے مطابق، ایک ہوا والا تکیہ، کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک گرم چادر، اگر ضرورت ہو تو ساتھ لے لی جائے، جائے نماز، بسکٹ، ورنہ مینا میں بحمد اللہ تعالی لوگ فراوانی کے ساتھ یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں، اور جو لوگ پرائیویٹ جاتے ہیں یا گورنمنٹ کے تھرو جاتے ہیں تو ان افراد کو پرائیویٹ ادارے یا گورنمنٹ باضابطہ طور پر کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرتی ہیں، لیکن چونکہ سفر ہے تو چھوٹی موٹی چیزیں ساتھ ہونی چاہیے۔ پانی کی باٹل جو آپ گلے میں لٹکائیں، ضروری ادویات، خصوصاً بخار کی دوائی، نزلے کی دوائی، درد کی دوائی، احرام کی زائد چادریں یہ بھی ساتھ رکھ لیں، 1 عدد چھتری بھی ہو، اگر گرمی کا موسم ہے تو چھتری انتہائی بہتر ساتھی بنتی ہے، اور موبائل کا چارجر یا پاور بینک یہ بھی اپنے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سب چیزیں آپ ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھ لیں، اور بقیہ آپ کا جو سامان تھا وہ آپ اپنی بلڈنگ جو آپ کو مکہ مکرمہ میں دی گئی ہے آپ وہاں پر چھوڑ دیں۔
اب آ جائیے، آج حج کا پہلا دن ہے، آج 8 ذوالحجہ ہے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ یہ کریں، جس طرح آپ نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، آج اسی طریقہ سے آپ احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ ممکن ہو تو آپ مثلا عزیزیہ میں اپنی بلڈنگ میں ہیں، یا خود بیت اللہ کے قرب و جوار میں آپ کو بلڈنگ میسر ہوئی ہے، تو آپ بلڈنگ سے حرم شریف میں آ جائیں 8 ذوالحجہ کو۔ یہاں آ کر مستحب یہ ہے کہ پہلے آپ طواف کریں، طواف کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، نفل نماز۔ اگر طواف نہیں کر سکتے تب بھی احرام کی نیت سے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، اور یہ نفل اس وقت آپ پڑھیں کہ جب مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت ہے تو آپ نفل نہ پڑھیں، بس آپ احرام کی نیت سے تلبیہ کہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم حاجی صاحبان کا ترانہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ نے تلبیہ کہنا ہے، اور تلبیہ کہہ کر آپ نے حرم شریف سے باہر آ جانا ہے۔ اگر حرم شریف میں آپ نہیں جا سکتے، وقت کم ہے یا کوئی اور آپ کا مسئلہ ہے، تو پھر جو آپ کی رہائش گاہ ہے، آپ اپنی رہائش گاہ سے ہی اپنا احرام باندھ لیجئے، اور وہیں سے آپ حج کی نیت کریں۔ احرام باندھنے کے بعد، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ 8واں ذوالحجہ ہے، 8 ذوالحج پہلا دن ہے، آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھ کر آپ نے حج کی نیت یوں کرنی ہے، آپ یہ کہیے، اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما اور میرے لیے آسان فرما۔ یہ آپ نے نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے تلبیہ کہا، اس کے بعد آپ محرم بن چکے ہیں۔ احرام کی وہ پابندیاں جو ہم نے آپ کو پہلے دن بتائی تھی، وہ تمام پابندیاں آپ پر لاگو ہو جاتی ہیں، اور آپ نے ان کی پاسداری کرنی ہے۔ ایک دو مسائل ہم ہر دن کے اعتبار سے عرض کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، اگر آپ نے حج افراد یا حج قران کرنا ہے، یہ تو ہم بتا رہے ہیں طریقہ حج تمتع کا، عمرہ پہلے کر کے فارغ ہو جائیں، پھر حج احرام کے حج کے لیے ایک نیا احرام باندھیں۔ لیکن اگر کسی نے حج افراد کرنا ہے، صرف حج، یا حج قران کرنا ہے، حج اور عمرہ کو اکٹھے احرام کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر آپ نے جو احرام پہلے سے باندھا ہوا ہے وہی احرام کافی ہے، آپ کو نیا احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سے آپ حج کریں۔ مسئلہ نمبر 2، مردوں کے لیے تلبیہ کا حکم تھوڑا سا مختلف ہے عورتوں سے۔ مرد قدر بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے، اور خاتون آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج خوب نکل آئے، تو اس وقت آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آپ سواری پر سوار ہوں، چونکہ آج کل وہاں پر بسیں موجود ہیں، بسیں آپ کو آپ کی بلڈنگ سے لے جائیں گی اور آپ کو مینا میں چھوڑ دیں گی۔ سواری پر سوار ہوں، وہاں پر آپ سواری سے اترنے لگے، صبح ہے، شام ہے، نمازوں کے بعد ہے، آپ حاجیوں کو ملتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی آپ وہاں گھومتے پھرتے رہیں، وہاں آپ نے تلبیہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ جب تلبیہ پڑھیں تو اس کو 3 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور اس دعا کو بھی انسان مانگتا رہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں۔
اور آپ کی ناراضگی اور جہنم کی آگ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ نے مینا میں پہنچ گئے، مینا میں خیمے ہیں، کبے نما خیمے موجود ہیں، آپ نے مینا میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور یہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا مسنون ہے۔ آپ چلے گئے تھے صبح، جب سورج نکلا، سورج نکلنے کے بعد آپ چلے گئے تو ظہر سے پہلے پہلے انسان وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے تو ظہر کی نماز بھی پڑھیں 8 ذو الحجہ والی، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں اور 9 ذو الحجہ کی آپ نے فجر بھی پڑھنی ہے۔ تو آج 8 ذو الحجہ کا دن آپ اپنی بلڈنگ سے چلے جائیں گے بس کے ذریعے مینا میں، اور وہاں آپ نے پورا دن، رات اور اگلی صبح تک آپ نے وہاں پر قیام کرنا ہے۔ آپ کا کھانا وہاں پر جو آپ کے منتظم ہوتے ہیں، معلم کے ذمہ ہوتا ہے، وہ پوری دیکھ بھال کرتا ہے اور آپ کے کھانے اور نظم کا انتظام کرتا ہے۔ ایک بات یاد رہیے کہ کھانا یہاں اجتماعی طور پر لگتا ہے، لوگ اپنے خیموں میں بھی لاتے ہیں اور وہیں اکٹھے بیٹھ کر بھی کھاتے ہیں، اس لیے بہت نظم و ضبط کا انسان کو مظاہرہ کرنا چاہیے۔ روٹی پر، سالن پر، کھانے پر، پانی پر اور اسی طرح فروٹس وغیرہ پر انسان کو جھگڑنا نہیں چاہیے۔ 8 ذو الحجہ کا دن آپ نے گزارا، آپ نے مینا میں گزارا جہاں کبے نما خیمے ہیں۔ دوسری چیز کہ آپ نے آ جانا ہے 9 ذو الحجہ کے دن، آپ ابھی مینا میں تھے، یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ آپ نے اس دوسرے دن میں کیا کرنا ہے؟ آج آپ نے عرفات پہنچنا ہے۔ عرفات 9 ذو الحجہ کی جو فجر ہے، نماز فجر آپ مینا میں پڑھیں، اس کے بعد آپ تکبیر تشریق کہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، آپ تلبیہ پڑھیں، آپ ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو عرفات جانے کی تیاری کریں، عرفات جانے کی تیاری کریں، اس کے لیے پرعزم ہو جائیں، تن و مند ہو جائیں، چاقو چوبند ہو جائیں، تر و تازہ اور توانا ہو جائیں۔ آج آپ نے عرفات جانا ہے۔ آپ اپنے ضرورت کا جو سامان ہے وہ اپنے ساتھ، سارا سامان نہ لے جائیں، کچھ سامان آپ یہیں رکھیں، ضرورت کا سامان، پانی کی باٹل ہے یہ ساتھ لے لیں، چھتری ساتھ لے لیں، آپ کے جو کارڈز ہیں وہ اپنے ساتھ لے لیں، موبائل ہے وہ ساتھ لے لیں، اگر کچھ نقدی ہے تو وہ اپنے پرس میں رکھ لیں۔ تو آج آپ نے مینا جانا ہے۔ مینا لمبا راستہ ہے، اگر وہاں پر گاڑیاں چل رہی ہوں تو بہت اچھا ہے، اگر گاڑی نہیں بھی ملتی تو پھر بھی انسان کو تلبیہ پڑھتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے اور دعائیں کرتے ہوئے آپ اس راستے سے عرفات پہنچ جائیں۔ جب آپ ناشتہ کر کے عرفات پہنچیں گے تو وہاں زوال سے پہلے پہلے آپ پہنچ جائیں، کوشش یہ کریں، وہاں پہنچ کر آپ نے کھانا کھانا ہے۔ عرفات ایک بہت بڑا کھلا میدان ہے، اس میدان میں آج خیمے لگے ہوئے ہیں، اور بعض جو وی آئی پیز شخصیات ہیں یا بعض جو پرائیویٹ حج کرتے ہیں ان کے لیے اس خیمے میں کولر پنکھے تو عام ہیں، لیکن وہاں پر اے سی کا بھی انتظام ہوتا ہے بعض خیموں میں، تو وہاں آپ پہنچ جائیں، کھانا کھائیں، آرام کریں یا پھر وضو اور غسل کریں، البتہ غسل کرنا افضل ہے۔ آپ نے جو وہاں پہنچنا ہے تو آج کا دن آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ بات یاد رکھیے، وقوف کا ہم پہلے معنی بیان کر چکے ہیں بالکل شروع میں، جہاں پر حج کی ٹرمز ہم نے بیان کی تھی کہ وقوف کا معنی ہے قیام کرنا، اور عرفہ سے مراد یہ میدان عرفہ ہے۔ گویا میدان عرفہ میں کھڑے ہو کر آج آپ نے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، بیٹھ بھی جائے تب بھی جائز ہے۔ تو وقوف عرفہ یہ کب سے شروع ہوتا ہے؟ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے زوال کے بعد۔ وہاں پر آپ کے پاس موبائل ہو تو موبائل میں آپ وہاں کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں کہ عرفات میں زوال کس وقت شروع ہوگا۔ جب زوال کا وقت گزر جائے تو زوال کے بعد آپ نے وقوف کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بیت اللہ کی طرف آپ رخ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں، شام تک آپ تلبیہ، استغفار، چوتھا کلمہ، دعائیں یہ کرتے رہیں، کھڑے ہو کر کریں تب بھی درست ہے، اور اگر آپ ان دعاؤں، تلبیہ، استغفار کے دوران بیٹھ بھی جائیں تب بھی درست ہے۔ آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے، یہ وقوف عرفہ فرض ہے، اگر کسی نے عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ خیر،
वकूफ अरफा करें, एक मसला तो ये समझे। दूसरा एक अहम मसला समझे कि मैदान अरफात में जोहर और असर की नमाज आपने पढ़नी होती है। जोहर और असर की नमाज आप पढ़ें। जोहर के वक्त में जोहर की नमाज, असर के वक्त में असर की नमाज आपने अजानो इकामत और जमात के साथ अपने अपने खैमे में अदा करनी है। यहां एक मसला अहम है जिसकी तरफ हम तवज्जो दिलाना चाहेंगे। देखें, वहां पर मैदान अरफात में एक मस्जिद है जिसे मस्जिद निमरा कहते हैं। मस्जिद निमरा में इमाम के साथ अगर चाहें तो जोहर और असर की नमाज इकट्ठी पढ़ना जायज है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए 3 शराइत हैं। अगर वहां ये 3 शराइत पाई जाती हैं, आप मस्जिद निमरा में चले जाएं और इमाम के पीछे नमाज पढ़ लें। और अगर वहां ये शराइत ना हो तो आप अपने अपने खेमों में अलग अलग वक्त में नमाज पढ़ लें। पहली शर्त यह है कि उस मस्जिद का इमाम इमामुल मुस्लिमीन या नायब हो, और वाकईतन ये इमाम इमामुल मुस्लिमीन का नायब होता है। नंबर 2, दोनों नमाजें जोहर के वक्त में इकट्ठी की जाएंगी। अगर जोहर का वक्त गुजर कर असर का वक्त शुरू हो गया, अब आप इकट्ठी नहीं कर सकते। नंबर 3, इमाम मुकीम है तो नमाज पूरी पढ़ाए, इमाम मुसाफिर है तो नमाज कसर करे। हमारी मालूमात के मुताबिक कई मरतबा ऐसा होता है कि इमाम मुकीम है लेकिन उसके बावजूद कसर करता है, जो कि दुरुस्त नहीं है। इसलिए अगर आपको पता चल जाए कि इमाम मुसाफिर था और नमाज कसर किया तो ठीक है, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको तहकीक नहीं हो सकती या आपको तहकीक यह है कि यह मुसाफिर था लेकिन उसके बावजूद उसने पूरी नमाज पढ़ाई है, अब इसके पीछे नमाज ना पढ़ें। क्यों? इसको अच्छी तरह जरा समझ लें। देखिए, अहनाफ के नजदीक इमाम अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर इमाम के लिए पूरी नमाज पढ़ाना जायज नहीं, वो नमाज पढ़ाएगा और कसर करेगा, क्योंकि सरहद से हदीस मुबारक में ये बात मौजूद है। इसलिए इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि अगर इमाम मुसाफिर है उसके बावजूद पूरी नमाज पढ़ाता है तो जो वहां पर अफराद हैं वो नमाज को अलग पढ़ें जिस तरह उन्होंने नमाज अपनी पढ़नी है। तो खैर, नमाजें अगर इकट्ठी करना चाहें इन शराइत के साथ तो उस इमाम के पीछे पढ़ सकते हैं, वगरना जोहर को जोहर के वक्त में अपने जगह पर पढ़ें अपने खैमे में, और असर को असर के वक्त में अपने खैमों में पढ़ें। यहां एक बात समझ ले, आपने मैदान अरफात में कितना देर ठहरना है। आप ठहरे रहें, सूरज गुरूब हो जाए, अब आपने मैदान अरफात में ही होना है। गोया मैदान अरफात में आपका सूरज वहां गुरूब होना चाहिए। जब सूरज गुरूब हो जाए तो मगरिब आपने नहीं पढ़नी, बस वहां से फिर आप कूच करें और आपने मुजदलिफा में जाना है। मुजदलिफा मैं इंशाअल्लाह नक्शा आगे बताऊंगा जिससे हमें इल्म होगा कि मुजदलिफा कहां पर है। गोया 9 जुल्हज्जा आपने पहुंचे हैं अरफात के मैदान में, पूरा दिन वहीं रहे, असर भी वहीं, मगरिब भी आपने वहीं की, लेकिन नमाज मगरिब वहां नहीं पढ़ी। आप फिर मगरिब पढ़े बगैर मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाए। ये भी एक लंबा सा सफर है, इसलिए खवातीन और बूढ़े अफराद आहिस्ता आहिस्ता, और जो तनोमंद और तवाना हूं तो वो अपनी रफ्तार के साथ मुजदलिफा में जा सकते हैं। रास्ते में आप अल्लाह का जिक्र करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तलबिया की कसरत करें। आप इस तरह जिक्र व अस्कार के साथ तशरीफ लाएं और मुजदलिफा के मैदान में आ जाएं। अच्छा, जब आप मुजदलिफा पहुंच जाएंगे तो मुजदलिफा में पहुंचकर आपने मगरिब और इशा की नमाज को इकट्ठा पढ़ना है, जिसका मैं तरीका अर्ज कर देता हूं। देखिए, मगरिब और इशा की नमाज को जो आपने इकट्ठा पढ़ना है तो उसका तरीका यह है कि इशा के वक्त में दोनों नमाजें पढ़नी है, यानी मगरिब में नहीं पढ़नी, क्योंकि मगरिब के बाद तो आप चलेंगे, आपको तो इशा हो जानी है रस्ते में। इशा के वक्त में आपने मगरिब और इशा पढ़नी है। पहले आपने अजान कहनी है, अजान कहनी है। अजान के बाद आपने इशा पढ़नी है। इशा के फर्ज पढ़ें, इशा के फर्ज के बाद फिर मगरिब के फर्ज पढ़ें, मगरिब के फर्ज के मुत्तसिल बाद फौरन इशा के फर्ज पढ़ें, बाद में मगरिब की सुन्नतें पढ़ लें और उसके बाद इशा की सुन्नतें पढ़ें और उसके बाद 3 रकत वितर पढ़ें। अजान भी एक दी जाएगी और इकामत भी एक ही होगी।
یہ اس طرح پڑھنا یہ آپ کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے. یعنی آپ مغرب کے وقت میں نماز نہ پڑھیں، آپ عشاء کے وقت میں اکٹھی پڑھیں. یہ بات میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان دو مقامات میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھنا ان شرائط کے ساتھ، اور میدان مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا پڑھنا ان شرائط کے ساتھ، صرف ان جگہوں پر ہی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی کہیں بھی دو نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے. بعض لوگ ظہر کے وقت میں عصر اور ظہر پڑھ لیتے ہیں، مغرب کے وقت میں عشاء اور مغرب پڑھ لیتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. اس کے متعلق بھی چند مسائل آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے، آپ نے مغرب جب کی ہے تو مغرب سے پہلے پہلے آپ نے میدان عرفات کو نہیں چھوڑنا. اگر کوئی شخص میدان عرفات مغرب سے پہلے پہلے چھوڑ کر واپس آ گیا اور دوبارہ اس میں نہیں گیا تو دم لازم آئے گا. ہاں، اگر غروب سے پہلے پھر واپس چلا گیا تو اب اس کا دم ساقط ہو جائے گا. دم کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بکری یا بھیڑ، اس کی ذبح کرنے کو دم کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 2 یہ میں نے عرض کر دیا، اور مسئلہ نمبر 3 بھی عرض کر دیا. البتہ 3 میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں. اگر کسی بندے نے مغرب کے فرض پڑے ہیں مزدلفہ میں، پھر سنتیں بھی ساتھ پڑھنی ہے، تو عشاء کے لیے دوبارہ اقامت کہہ دے، البتہ اذان پہلی ہی کافی ہے. چوتھا مسئلہ یہ کہ وقوف عرفہ یہ فرض ہے اور حج کا رکن ہے. اگر کسی نے اس وقوف کو نہ کیا، مثلا وہ مینا میں تھا 9 ذوالحجہ کی صبح، مینا سے ڈائریکٹ وہ چلا گیا مزدلفہ میں، وہ عرفات نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوا. تو 9 کی جو رات آئے گی، آنے والی رات، اس رات میں آپ نے مزدلفہ میں رہنا ہے. وہاں آپ نے ذکر و اذکار کرنے ہیں، وہاں آپ نے تلاوت کرنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، آپ نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور آپ نے تلبیہ وغیرہ وہاں پڑھنا ہے. تو رات کو کچھ دیر آرام بھی کر لیں. اس لیے آپ مینا سے جب گئے تھے تو اپنے ساتھ کچھ چٹائی وغیرہ، کوئی چھوٹا سا تکیہ ہوا بھرنے والا، یہ چیزیں آپ اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ آپ کو مینا میں رات گزارتے ہوئے پریشانی نہ ہو. چونکہ وہاں کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی، خود ہی اویلیبل کرنی پڑتی ہے. 9 ذوالحجہ کی رات ہے، آپ مزدلفہ میں موجود ہیں. آپ نے مزدلفہ میں، آپ کے پاس تھیلی ہو، پلاسٹک کی بوتل ہو، جو چیز ہو، آپ وہاں سے 70 کنکریاں چھوٹی چھوٹی، جن کا سائز چھوٹے یا بڑے چنے کے برابر ہو، آپ 70 کنکریاں وہاں سے چن لیں. ممکن ہو تو وہاں پانی بھی موجود ہوتا ہے، وہاں ان کو دھو لیں، اور دھونے کے بعد آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں. 9 ذوالحجہ بھی مکمل ہو چکا ہے. آج 10 ذوالحجہ ہے اور یہ حج کا آج تیسرا دن ہے. حج کا یہ جو تیسرا دن ہے، حاجی صاحبان کے لیے یہ دن انتہائی مصروفیت کا دن ہے. آج کا دن حاجی صاحبان نے بہت زیادہ مصروف ہو جانا ہے. اس لیے حاجی صاحبان کو چاہیے کہ حاجی صاحبان آج بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ مشقت کریں. آج انہوں نے 3 کام کرنے ہیں، اور چوتھا کام اگر ہو سکے تو آج کرنا ہے. آپ مزدلفہ میں ہیں، رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری ہے، تو آج صبح یعنی 10 ذوالحجہ کی صبح کو آپ نے مزدلفہ کو چھوڑنا ہے اور وقوف مزدلفہ کر کے. کیا مانا؟ آپ نے 10 ذوالحجہ صبح صادق کے بعد اندھیرے ہی میں اذان دینی ہے. اندھیرے میں اذان دیں، آپ فجر کی سنتیں پڑھیں، پھر فجر کے فرض جماعت کے ساتھ اندھیرے ہی میں پڑھیں. یہ مستحب ہے. اگر کسی نے روشنی میں پڑھ لیے سورج نکلنے سے پہلے پہلے تب بھی درست ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھیں. نماز کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں اور تسبیحات فاطمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات فاطمہ پڑھتے رہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کرتے رہیں. چوتھا کلمہ اس کا ورد کرتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں، اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلا دیں. آج اپنی ذات کے لیے، اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور امت مسلمہ اور اپنے ملک کے لیے خوب دعائیں مانگیں. اچھا،
आपने ये जो दुआ का अमल स्टार्ट किया था खड़े होकर, आपने ये अंधेरे में शुरू किया था, इस अमल को इतना बढ़ा दें कि खूब रोशनी हो जाए, खूब उजाला फैल जाए। इस अमल को वकूफ मुजदलिफा कहते हैं कि मुजदलिफा में आप खड़े हो गए। इसके लिए भी चंद मसाइल हैं। नंबर एक, वकूफ मुजदलिफा यह वाजिब है। अगर किसी ने उजुर की वजह से छोड़ दिया तो उस पर कुछ लाजिम नहीं, और अगर किसी ने बिला उजुर छोड़ दिया तो उस पर भी दम लाजिम आएगा। एक बकरी या एक भेड़ उसको हुदूद हरम में ज़िबा करनी होगी। अच्छा, वकूफ मुजदलिफा ये सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक है, और जब सूरज की लाइट बहुत ज्यादा फैल जाए तो उस वक्त तक सुन्नत मुअक्कदा है कि इंसान वकूफ करे। एक शख्स ऐसा है जो किसी मर्ज या ज़ोफ की वजह से मुजदलिफा में वकूफ न करे, बस आया वहां रातों रात, फिर वो मिना में निकल गया, तो उस पर दम वाजिब नहीं है। औरत है, रश ज्यादा है, उस खौफ से कि मैं रश में नहीं जा सकूंगी, और वाकईतन ऐसा होता है कि कई अफराद वहां पर गुम हो जाते, 2 दिन बाद मिलते हैं। खुद हमारे साथ ऐसा मामला हुआ था कि हमारे साथ एक हमारे दोस्त थे, तो बावजूद इसके कि मैं उनको अपने हाथ से पकड़कर साथ साथ ला रहा था, बस मुजदलिफा से थोड़ा सा आगे ही निकले थे, तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटा की मिकदार, कि वो शख्स हाथ छुड़ा के निकल गए। 2 दिन के बाद वापस खैमे में आए। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसलिए खवातीन को अगर ये खौफ है कि रश की वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, तो वो रातों रात वहां चली जाए वहां से, और मिना में चली जाए। अब उस पर दम वाजिब नहीं होगा। आपने सूरज निकलने वाला था, आपने अज़कार तस्बीह और तलबिया कसरत से किया, अब आपने जाना है मिना की तरफ, और वहां मौजूद अपनी रिहायशगाह पर आपने पहुंचना है। गोया इसको आसान लफ्जों में अगर हम ताबीर करें तो हम यूं ताबीर कर सकते हैं कि आप 8 ज़ुल्हज्जा को मिना पहुंचे, 9 को वहां से अरफात आए, 9 की रात को आपने मुजदलिफा गुजारा, और फिर जो 10 की सुबह थी वहां से आप फिर दोबारा अपने मकाम यानी आप मिना में आ चुके हैं। आपने वहां पर आए, और अब वहां आप पर आपने 3 दिन रहना है। ये पूरा 10 का दिन, अगला 11 का दिन, फिर 12 का दिन, आपने इनको इस तरह कर लेना है। 10, 11 और 12 ये 3 दिन आपने यहां पर रहना है। एक दिन आपने जाना होगा बैतुल्लाह में। मिना में पहुंचकर आज आपने 3 काम करने हैं। हाजी साहिबान बिल्कुल अलर्ट हो जाएं, तैयार रहें, आज आपकी मसरूफ तरीन जिंदगी का दिन होगा। पहला काम ये करें, जमरे उकबा की रमी करें। जमरे उकबा एक बड़ा उकबा है, यानी जहां पर जाकर आपने कंकर मारने हैं। उनमें से सिर्फ एक, यानी 3 वहां पर सुतून है, इन 3 सुतूनों में से आपने एक सुतून पर सिर्फ रमी करनी है, एक सुतून को कंकर मारने हैं। वहां पर खुद इंतजामिया की जानिब से बाकी जो सुतून है, बाकी जो सुतून है, बाकी सुतूनों पर उन्होंने एक लगाया होता है, हेज लगाया होता है, एक तार्स टाइप लगाई होती है, ताकि आप उस तरफ ना जाए। सिर्फ एक सुतून खुला हुआ होता है, एक सुतून खुला है। अब आपने वहां से अपनी रिहाइश गाह से आए, अपने साथ 7 कंकर लाए। मुनासिब तो है कि 7 से ज्यादा लाए, मुमकिन है वहां पर कोई गिर जाए तो फिर गिरे हुए को फिर मत उठाएं, फिर आप नया वहां से अपने पास से ले लें। आप जमरात पर आए, आज सिर्फ जमर उकबा बड़े की आपने उसको कंकर मारने हैं। तरीका इसका यह है कि जमरा से कम अज कम 5 हाथ के फासले पर हर कंकरी पर आप बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर इस तरह करके मारते जाएं। कंकरी का जमरे की जड़ में या उसके नजदीक जो इहाता गोल दायरा बना है वहां पर गिरना जरूरी है। अगर किसी ने इतनी जोर से मारी कि कंकरी दूसरी जानिब जा गिरी तो ये कंकरी शुमार नहीं होगी। इसलिए बड़ी तवज्जो के साथ, बाज लोग वहां जूते मार रहे हैं, बाज वहां बड़े बड़े पत्थर मार रहे हैं, दूसरों को जख्मी कर रहे हैं। अल्लाह के बंदों को इन बातों से दूर रहना चाहिए। जो मुनासिब काम है वही करें, गैर मुनासिब कामों से इंसान दूर रहे।
अच्छा, ये तो आपने एक काम करना है। कंकरी मारने के साथ आप ये भी दुआ पढ़ लें तो बेहतर है। रग़मल शैतान व हिज़्बी अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व सअयम मशकूरा व ज़ंबम मग़फूरा। ये आपने पढ़ना है। आज का जो दिन है, आज के रमी, रमी कहते हैं पत्थर मारने को। आज जो आप कंकर मारेंगे उसका वक्त, जो सुन्नत वक्त है, वो ये है कि जब सूरज निकल आए, तुलुए आफ्ताब से लेकर जवाल आफ्ताब तक है, यानी जवाल के वक्त तक है एक। फिर गुरूब आफ्ताब तक बिला कराहत जायज है। अगर कोई लेट हो जाता है तो ठीक है, मगरिब तक आज के दिन आप रमी कर सकते हैं। गुरूब आफ्ताब से लेकर सुबह सादिक तक, यानी दूसरे दिन सहरी का वक्त खत्म होने तक, ये वक्त औरतों और बच्चों, औरतों और ज़ईफों के लिए ये मकरूह नहीं है। अगर कोई बिला वजह इतनी ताखीर कर दे कोई मर्द, तो फिर उसके लिए मकरूह है, लेकिन शुमार हो जाएगा। अच्छा, हमने शुरू में आपसे अर्ज किया था कि आप उमरा के लिए जो इहराम बांधेंगे, तो उमरा का इहराम जब बैतुल्लाह में जाएंगे वहां आपका इहराम तलबिया खत्म हो जाएगा, और जो तलबिया आप हज के लिए शुरू करेंगे, हज के इहराम के लिए, आपने आज जो पहला कंकर मारा है ना, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहकर, इसके साथ आज का आपका तलबिया खत्म हो गया। आज की रमी के बाद वहां ठहर कर दुआ करना मसनून नहीं है। बस आपने रमी की है, कंकर मारे हैं, और फिर वापस आप आ जाएं। एक काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम, आपने आज कुर्बानी करनी है। अगर आपका हज क़िरान है, जिसमें हज और उमरा का इहराम इकट्ठा बांधना है, या आप हज तमत्तो कर रहे हैं कि पहले आपने उमरा कर लिया, उसके बाद इहराम खोल दिया, उसके बाद 8 ज़ुल्हज्जा को हज का इहराम बांध लिया, उमरा करने के बाद हज करना है या उमरा प्लस हज करना है, तो फिर आपको एक कुर्बानी करना वाजिब है। और जो शख्स सिर्फ उमरा, सिर्फ हज कर रहा हो, हज इफराद, उसके लिए कुर्बानी करना वाजिब नहीं, अलबत्ता मुस्तहब जरूर है, कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। यह आपका दूसरा काम हो गया। एक बात यहां ज़हन में रखें कुर्बानी के हवाले से, कि कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10, 11 और 12। पहले दिन अफजल है, दूसरे तीसरे दिन जायज है। नंबर 2, जो शख्स हज किरान या हज तमत्तो कर रहा है, उसके लिए यह बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि देखें, पहले कंकर मारे, कंकर मारने के बाद कुर्बानी करे, कुर्बानी करने के बाद फिर अपना सर मुंडवाए या अपने सर के बाल काट कर इहराम खोले। जब तक कुर्बानी नहीं हो पाती, चाहे 2 दिन गुजर जाएं, चाहे वो तीसरे दिन कुर्बानी करे, तो कुर्बानी करने से पहले वो अपना इहराम नहीं खोल सकता। इहराम खोलना यानी सर मुंडवाना उस वक्त होगा कि जब वो कुर्बानी कर लेगा। गोया 3 काम आज हमने करने हैं। नंबर 1, उस सुतून को कंकर मारना। नंबर 2, कुर्बानी करना। नंबर 3, सर मुंडवाना या सर के बाल कटवाना, और उसके बाद इहराम खोल देना। आज ये 3 काम करने हैं और बड़ी तरतीब से करने हैं। यहां एक बात और भी समझ लें कि देखिए, कुर्बानी के लिए जानवर आप खुद जाकर खरीदें और अपने सामने ज़िबा करवाएं, ये तो बहुत ही ज्यादा बेहतर अमल है। लेकिन अगर वहां कोई बाइतमाद आदमी है, बाइतमाद बैंक है, कोई इतमाद वाला इदारा है, तो आप उसके थ्रू भी अगर करवाना चाहें तो बिल्कुल जायज है। लेकिन उनको बता दें कि मैं आज, आप किस वक्त मेरी कुर्बानी कर देंगे, ताकि मैं उस कुर्बानी के वक्त के बाद अपना सर मुंडवाऊं। आपने जो कुर्बानी वहां पर करनी है, उसमें वही शराइत हो जो हज वाले शराइत होती हैं, जो कुर्बानी वाले जानवर की शराइत होती हैं, जो हम ईद पर कुर्बान करते हैं। अच्छा, एक बात यह भी समझ लीजिए कि अगर कोई शख्स वहां मुकीम हो जाता है, तो मुकीम के लिए कुर्बानी जो उसकी इस्तेदाद वाली है, वो भी करना उस पर वाजिब है। जिस तरह आमतौर पर यहाँ कोई अमीर आदमी हो, साहिब वुसअत आदमी हो, तो वो कुर्बानी करता है, तो वहां भी आपने कुर्बानी करनी है। हज तमत्तो और हज किरान की जो कुर्बानी है, इसको हुदूद हरम में आपने ज़िबा कराना जरूरी है। अगर किसी ने किसी और जगह ज़िबा करा दी तो फिर जायज नहीं। 10 ज़ुल्हज्जा का तीसरा काम,
तीसरा काम यह है कि हम तीसरे काम के लिए अपना सर मुंडवाएं या अपना बाल 1-1 इंच पूरे चारों जानिब से छोटे करा दें, यानी कसर कराएं। खवातीन के लिए हुक्म यह है कि वो एक पूरे की मिकदार के बराबर अपने सर के बालों को काटेंगी। तो आज हमने ये 3 काम तसलसल के साथ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में ये बात समझ लें। देखिए, अगर कोई शख्स अपना सर मुंडवाता है या कसर कराता है, हज का हल्क या कसर मिना में कराएं तो सुन्नत है। हुदूद हरम में जहां भी कराएं जायज है, अलबत्ता हुदूद हरम से बाहर कराना ये जायज नहीं है। अगर किसी ने बाहर करा लिया तो दम लाजिम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये जो 3 काम थे कि हमने बड़े सुतून की रमी करनी है, कुर्बानी करनी है और सर के बाल मुंडवाने या कटवाने हैं, इसमें तरतीब वाजिब है। अगर किसी ने तरतीब को उलट पुलट कर दिया, मसलन कुर्बानी पहले कर ली, रमी बाद में की, इसी तरह हल्क पहले करा लिया, कुर्बानी बाद में की, तो इसमें हर सूरत में इंसान पर फिर दम लाजिम आएगा। जब आपने ये 3 काम कर लिए हैं तो आपका इहराम खुल गया। अब आपसे इहराम की पाबंदियां खत्म हो गई। अगर आप आम सिविल कपड़े पहनना चाहें जायज है, सर ढांपना चाहें जायज है, खुशबू लगाना चाहें जायज है, बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अलबत्ता अब एक काम और रह चुका है। अगर वो काम जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक इंसान अपनी बीवी के साथ सोहबत नहीं कर सकता। अगर सोहबत करेगा, एक बड़ा जानवर ऊंट या गाय देना उस पर लाजिम आएगा। इसलिए एक काम और है, वो है तवाफ ज़ियारत। तवाफ ज़ियारत करना है, यह हज का अहम रुकन है। जिस तरह हमने पहले अर्ज किया था कि मैदान अरफात में वकूफ करना यह हज का अहम रुकन है। अगर वकूफ नहीं किया तो हज नहीं हुआ। बिल्कुल इसी तरह आज आपने 10 जुल्हज्जा से लेकर 12 जुल्हज्जा तक इन दिनों में आपने तवाफ ज़ियारत कर लिया तो हज हो गया। अगर किसी ने नहीं किया तो उसका हज नहीं हुआ। एक बात यहां याद रखिए कि अगर रमी है, कुर्बानी है, हल्क है या कसर है, इसके बाद आप तवाफ ज़ियारत करें तो सुन्नत है। और अगर किसी ने इससे पहले भी कर दिया तो जायज है, हो जाएगा, लेकिन मकरूह होगा। एक बात यहां समझ लीजिए कि आपने जब अपना हल्क करा लिया, आपने आम कपड़े पहन लिए, तो तवाफ ज़ियारत आम कपड़ों में भी किया जा सकता है। आम कपड़ों में भी आप तवाफ ज़ियारत कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। तवाफ ज़ियारत का वही तरीका है जो हमने पहले आपकी खिदमत में पेश कर दिया कि आपने बैतुल्लाह जाना है। वहां पर जो एक सब्ज लाइट है वो आपकी पुश्त पर हो और आपके फ्रंट पर आपका हजर अस्वद हो, वहां आपसे स्टार्ट लेंगे और 7 चक्कर आपने लगाने हैं। तवाफ ज़ियारत के बाद हज की साई करनी है तो कर लें। हज की साई अगर पहले कर ली है तो तवाफ ज़ियारत के बाद हज की साई आप न करें, बस तवाफ काफी है। और तीसरा अहम मसला समझ लें कि पहले हमने अर्ज किया था कि तवाफ ज़ियारत जब तक नहीं किया बाकी चीजें तो करना जायज है, लेकिन बीवी के साथ इख्तिलात, बोसो किनार, हम बिस्तरी जायज नहीं है। और जब एक इंसान ने तवाफ ज़ियारत कर लिया हो तो अब ये चीजें उसके लिए हलाल और जायज हो जाती हैं। गोया आज का दिन जो हमारा था, आज के दिन हमने ये काम कर लिए। एक बात यहां जहन में रख लें, अगर किसी ने 12 जुल्हज के गुरूब आफ्ताब के बाद तवाफ ज़ियारत किया, उससे पहले न किया, तवाफ तो काउंट हो जाएगा लेकिन दम लाजिम आएगा। और अगर कोई औरत ऐसी थी कि इन्हीं दिनों उनको मेंसेस आ गए या निफास आ गया और वो अपने तवाफ ज़ियारत को मुअख्खर करती रही कि 12 जुल्हज्जा भी गुजर गया, उसके बाद 13, 14, 15 जितने भी जुल्हज्जा को वो पाक हुई, तो पाक होने के बाद भी वो तवाफ ज़ियारत और साई कर ले। मजबूरी की वजह से उसने जो लेट किया है, इस वजह से इस औरत पर दम नहीं होगा, बल्कि बगैर दम दिए ये अपना तवाफ ज़ियारत कर ले। आज हज का चौथा दिन है, यानी 11 जुल्हज्जा। बस 11 जुल्हज्जा और 12 जुल्हज्जा, इन दिनों में हमने सिर्फ कंकरियां मारनी है, यानी 3 सुतूनों को जाकर हमने कंकरियां मारनी है। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। कंकरियों का तरीकाकार यह है कि हमने पहले जमरा और पहले सुतून को मारें,
फिर दरमियानी को और फिर आखिरी को। अपने साथ हम 21 कंकरियां ले जाएं, हर एक जमरे के लिए 7-7 कंकरियां। एहतियात यह है कि आप 2-4 कंकरियां जायद रख लें तो बेहतर है। तरीका वही है जो हमने पहले अर्ज कर दिया है। जब आप पहले जमरा की कंकरी मारने से फारिग हो जाए तो थोड़ा सा साइड पे होकर किबला की तरफ आप अपना रुख करें और हाथ उठाकर आप दुआ मांगें। उसके बाद फिर अगले जमरा पर जाएं, कंकर मारें, फिर थोड़ा सा साइड पे खड़े होकर फिर हाथ उठाएं बैतुल्लाह की तरफ और दुआ मांगें। फिर जब तीसरे पर जाएं तो उसको कंकर मारें, फिर वहां दुआ के लिए ठहरे नहीं, बस आपने वहां से अपनी रिहाइश गाह पर आ जाना है। इन दिनों में आपने जिक्र करना है, अज़कार करने हैं और दुआओं में रहना है, फजूलियात से अपने आप को बचाना है। ये दूसरा दिन होगा कंकरी के हवाले से, यानी 11 ज़ुल्हज्जा। आज रमी का वक्त जवाल के बाद शुरू होगा, जवाल से गुरूब आफ्ताब तक मुस्तहब है। अगर इस वक्त उज़ुर हो, मसलन हुजूम बहुत ज्यादा हो या नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ का खतरा हो, तो मगरिब या इशा के बाद भी बिला कराहत जायज है। लेकिन बिला उज़ुर गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर 12वीं ज़ुल्हज्जा की सुबह तक मुअख्खर करना यह मकरूह है। आज की रमी जवाल से पहले जायज नहीं है। आप वहां पर जवाल का वक्त रोजाना देख लिया कीजिए, आपके पास मोबाइल मौजूद होगा या वहां से किसी से मालूम कर लें। अगर जवाल से पहले 11 की किसी ने रमी कर ली गलती से तो उसकी रमी काउंट ही नहीं होगी। जब जवाल शुरू हो जाए दोबारा जाए और दोबारा करके आ जाए। आज 11 ज़ुल्हज्जा है, नमाजें आपने यहीं पर पढ़नी है। हज का 5वां और आखिरी दिन है। आज हाजी साहिबान ने आज भी रमी करनी है। आज की रमी उसी तरह है जिस तरह के 11 ज़ुल्हज्जा की रमी है। इसके लिए भी चंद मसाइल है। देखिए, 12 ज़ुल्हज्जा को आपने गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप मिना से आए और मक्का में आ जाएं या अजीजिया में अपनी बिल्डिंग पर आ जाएं, जायज है। अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने रमी की है लेकिन गुरूब उसको मिना में ही हो गया, अब अगर वो अपनी बिल्डिंग पर आना चाहे जायज है, लेकिन मकरूह है, दम वगैरह लाजिम नहीं है, मुनासिब नहीं है। और अगर कोई शख्स ऐसा है कि वो 13 ज़ुल्हज्जा की सुबह सादे को भी मिना ही में रह गया, अब उसके लिए बगैर रमी करके वापस आना जायज नहीं है, बल्कि 13 ज़ुल्हज्जा की रमी करके अब वापस आएगा। ये रमी करना इस पर वाजिब है। और 13 दूसरा मसला समझ लें कि 13 ज़ुल्हज्जा की जो रमी का वक्त है जवाल के बाद है। ताहम अगर कोई शख्स सुबह सादिक से लेकर जवाल तक भी करना चाहे तो बहरल इसकी रमी शुमार हो जाएगी। ये 5 दिन थे हमारे जो हमने मैदान मिना, अरफात, मुजदलिफा में गुजारे हैं। बेहम्दिल्लाह आज 12 ज़ुल्हज्जा को हमारा हज मुकम्मल हो गया। तमाम अहबाब को अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक से हज हुआ। हज आपको मुबारक हो। अल्लाह का हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने तौफीक बख्शी है। हाजी साहिबान जितने अय्याम मक्का मुकरमा में रहे तो ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारे। तिलावत है, अज़कार है, दुरूद शरीफ है, नवाफिल है, तवाफ है, उम्रे हैं, सदका खैरात, जो भी काम है नेक करते रहें और इस मौका को अपने लिए सादत समझें। और गनीमत भी अल्लाह ने चुना है, सादत मंदी है, गनीमत है कि पता नहीं हम दोबारा यहां पर आते हैं या दोबारा हम यहां पर नहीं आते। अल्लाह तबारक व ताला हमें जो हज की तौफीक दी है, अल्लाह मजीद तौफीक देता रहे। इस किस्म की हाजी साहिबान दुआ करते हुए चले आए। यहां एक बात आपकी खिदमत में हम मजीद अर्ज करना चाहेंगे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इजमाली एक नक्शा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। बिल्कुल आसान होगा इंशाअल्लाह अजीज। इस तरह अगर इंसान करना चाहे तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि इस तरह ये शख्स ये देखिए, ये आपके सामने हमने थोड़ा सा नक्शा पेश किया है। ये देखिए, ये बिल्कुल आसान है, इसको एक नजर में ही आपके सामने वाजे हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने आ जाना है यहां पर। यह है मीना। आप बैतुल्लाह के करीब हैं, वहां बिल्डिंग है, वहां से आ जाए मीना में। आप मिकात से आए हैं, डायरेक्ट वहां से आ जाए। आप यहां करीब में रहते हैं अजीजिया में, आप यहां से आ जाए। पहला दिन आपने यहां मिना में आना है जहां पर यह खैमे है।
8 ज़ुल्हज्जा आपने यहां गुजारनी है, रात यहां पर क़याम करें। जब 9 ज़ुल्हज्जा हो जाए, 9 ज़ुल्हज्जा की सुबह फजर की नमाज पढ़ें, नाश्ता करें, अपने आप को लैस और तैयार करें, जरूरत का सामान लें और आपने आ जाना है अरफात की तरफ। ये उसका रास्ता है। ये देखिए, ये आपने 9 ज़ुल्हज्जा को यहां पहुंचाना है। जवाल से पहले पहले आप यहां जबल अरफात में पहुंचिए। देखिए इतना बड़ा ये मैदान है, इसको मैदान अरफात कहते हैं, और यहाँ एक पहाड़ है जिस पहाड़ को जबल अरफात कहते हैं। आपने यहां पूरा दिन रहना है। 9 का असर यहां, मगरिब आपने यहां करनी है, लेकिन मगरिब आपकी जब यहां हो जाए, मगरिब पढ़नी नहीं है। मगरिब पढ़े बगैर आपने यहां से फिर मुजदलिफा आना। ये मुजदलिफा है। ये यहां आप आ जाएंगे, रात को पहुंचेंगे 9 की रात को। रात यहां क़याम करें, सुबह यहां वकूफ करें, वकूफ मुजदलिफा, वकूफ मुजदलिफा करें। वकूफ मुजदलिफा करने के बाद आप फिर 10 की सुबह होंगे यहां। 10 की सुबह को आप फिर मिना में आ जाए, अपने खैमों में, अपने खैमों में आ जाएं। अपने खैमों में फिर आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1, यहां आ जाए। मैं इसको मजीद जूम कर रहा हूं, आपको नजर आ रहा होगा। ये जो जगह है, ये वहां पर 3 सुतून बने हुए हैं जहां आपने आज कंकरी करनी है। आप कंकरी मारें, पहला काम। नंबर 2, कुर्बानी करें, दूसरा काम। नंबर 3, सर के बाल मुंडवाएं या कटवाएं, तीसरा काम। 3 काम जब आप कर चुके तो उसी दिन से लेकर 12 ज़ुल्हज्जा तक आप बैतुल्लाह जाकर आप तवाफ़े ज़ियारत करें। उसी दिन करके आ जाए, बहुत अच्छा। वगरना दूसरे दिन या उससे अगले दिन, यानी 12 की शाम से पहले पहले, मगरिब से पहले पहले कर लें। फिर आप आ जाएं इसी मिना में, रात आप मिना ही में गुजारें कि यह सुन्नत है। फिर आप यहीं से 11 को आए, तीनों सुतूनों को कंकर लगाएं, फिर वापस चले जाए। फिर 12 को आए, तीनों सुतूनों को कंकर लगाएं। फिर मगरिब से पहले पहले आप हजरात अपनी बिल्डिंग पर चले जाएं। देखिए बहुत ही आसान और आम फहम नक्शा है जो आपकी खिदमत में हमने पेश कर दिया है। आपका हज बिहम्दिल्लाह मुकम्मल हो चुका है, अल्लाह की तौफीक है। अब आपने जो अगला काम करना है वो मदीना मुनव्वरा में हाजिरी देनी है। जब आपका इरादा बने कि मैं मदीना मुनव्वरा जाना चाहता हूं, तो बेहतर यही है कि इंसान जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से अपना सफर सरअंजाम दे। कब्र की ज़ियारत की नीयत से अपना सफर सरअंजाम दे। जब इंसान वहां पहुंचे तो नीयत यह करे कि मैं हुजूर के रोजा की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं और वहां जाकर हुजूर अलैहि सलाम से शफाअत की दरख्वास्त करूंगा। मैं यहां 2 अहादीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा। पहली हदीस शुअबुल ईमान में इमाम बैहकी रहमहुल्लाह ने रिवायत की है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। जो शख्स मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा तो मेरी शफाअत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। तो रोज़ा रसूल और हुजूर अलैहि सलाम की कब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से इंसान को सफर करना चाहिए। नंबर 2, अल-मुअजमुल औसत में इमाम तबरानी रहमहुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत नकल की है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मन जाअनी ज़ाइरन ला तुअमिलुहु हाजतुन इल्ला ज़ियारती। जो शख्स मेरी ज़ियारत को आए और उसका मकसद मेरी ही ज़ियारत हो, कान हक्कन अलैया अन अकून लहू शफीअन यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन मुझ पर यह बात बरहक होगी, मुझ पर यह बात जरूरी होगी कि मैं उस शख्स की शफाअत करूं। तो इतनी अजीम शान अहादीस मुबारक के मज़ामीन में इस बात की तरफ रग़बत दिलाई गई है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाए तो आप अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक की ज़ियारत की नियत से जाए। यहां एक और बात आपकी खिदमत में अर्ज करते चले। देखिए, आप मक्का मुकरमा से मदीना आए हैं, आप रास्ते में हैं, आप रास्ते में ज़ौक़ व शौक़ के साथ, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाएं, सामान अपनी रिहाइशगाह पर रखें। बेहतर तो यह है कि इंसान वुजू कर ले, गुस्ल कर ले, वगरना वुजू कर ले, अच्छा लिबास पहने, उम्दा खुशबू लगाएं, खूब तैयार होकर इंसान बसत एहतराम और अदब मस्जिद नबवी में आए। सुन्नत के मुताबिक इंसान यहां दाखिल हो, बिस्मिल्लाह
वल्हम्दु लिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। इंसान इन दुआओं का एहतमाम करे। मकरू वक्त ना हो तो तहियतुल मस्जिद 2 रकत पढ़ ले। रियाजुल जन्ना, मिंबर रसूल और हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजा के दरमियान का जो इलाका और जगह है, अगर यहां जगह मिलती है तो बहुत अच्छा, लेकिन रश ज्यादा होता है, जहां भी मस्जिद में जगह मिले वहां पढ़ ले। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप आ जाए तो आप सलाम की तरतीब बनाए, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजा पर सलाम अर्ज करें। रोजा मुबारक की जाली से 4 या 5 हाथ के फासले पर वहां पर शुरते खड़े होते हैं, पूरी तरतीब बनाते हैं। वहां अब जब आप आए, कब्रे मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने अदब के साथ खड़े हो जाएं और इंसान इस तरह सलाम पेश करे। इंसान कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, क़द बल्लग़्तर रिसालह व अद्दैतल अमानह व नसहतल उम्मह व जाहदत फी अम्रिल्लाहि हत्ता क़बज़ रूहक हमीदम महमूदा, फजज़ाकल्लाहु अन सगीरिना व कबीरिना खैरल जज़ा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजा पर आप आए, आपने दुआ, आपने सलाम पेश किए और आपने शफात की दरख्वास्त की। फिर एक कदम आगे चले तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र के सामने खड़े हो जाएं और यूं सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह अबा बकर सिद्दीक, जज़ाकल्लाहु अन उम्मत मुहम्मदिन खैरा। फिर आगे चले जाएं, एक कदम मजीद बढ़े तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकी कब्र मुबारक के सामने खड़े हूं और यूं सलाम अर्ज करें। वहां पर लिखे हुए हैं अस्सलामु हुना, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मुमिनीन उमर अल फारूक अल्लज़ी अज़्ज़ल्लाहु बिहिल इस्लाम, जज़ाकल्लाहु अन उम्मत मुहम्मदिन खैरा। आपने ये करना है। और यहाँ एक बात मजीद आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहेंगे। देखिए, कोई हाजी या कोई मोतमिर जब हज पर या उम्रा पर जाना चाहता है तो इलाके के अफराद उसके हाथ सलाम पेश करते हैं कि हुजूर की खिदमत में आपने जाकर सलाम पेश करना है। तो अगर कोई आपको सलाम पेश करने के लिए कहता है तो आपने जाकर सलाम कैसे पेश करना है। मसलन उस्ताद मोहतरम हजरत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुम ने फरमाया कि आप रोज़े रसूल पर जाएंगे तो मेरी तरफ से सलाम पेश करें, तो आप किसी का सलाम यूं पेश करेंगे, या रसूल अल्लाह, मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब की तरफ से सलाम कबूल फरमाएं, वो आपकी शफात के तलबगार हैं। आप जाते हैं मुझ आजिज की तरफ से और मेरी जानिब से आप सलाम पेश करें। आप कहें या रसूल अल्लाह, शब्बीर अहमद हनफी की तरफ से सलाम कबूल फरमाएं, वो आपकी शफात का तलबगार है। दिन में जितनी मर्तबा हो सके रोज़ा रसूल पर जाएं, सलातो सलाम पेश करें। और मदीना मुनव्वरा में आप जितना अरसा क़याम करें, तिलावत करें, जिक्र अज़कार है और साथ साथ दुरूद शरीफ की कसरत है। मर्द हजरात मस्जिद नबवी में बजमात नमाज का खूब एहतमाम फरमाएं। और जहां तक खवातीन का ताल्लुक है तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां वो अपनी रिहाइश गाह पर नमाज पढ़ें, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद से बेहतर है अपने घर में नमाज पढ़ना। इसलिए अगर कोई ऐसा मौका आ गया कि आप खवातीन रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए गई थी कि अचानक पता चला कि नमाज का वक्त और सफ़े बन गई, तो खवातीन जहां खड़ी हैं वहां आप नमाज पढ़ लें, वगरना बिलकस्त नमाज पढ़ने के लिए आप अपनी ही बिल्डिंग को तरजीह दें कि हदीस मुबारक से यही साबित है। बस आखिर में हम आपकी खिदमत में चंद मुक़द्दस मकामात की बात करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज के हम हज कोर्स की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। चंद मुक़द्दस मकामात हैं, इन मुक़द्दस मकामात के बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए ताकि
اللہ رب العزت جب لے جائے تو ان مقدس معلومات کا ہمیں پتہ ہو اور ہم ان کی زیارت سے سرفراز ہو سکیں۔ سب سے پہلی چیز بیت اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ یہ پہلی عمارت ہے جو روئے زمین پر بنائی گئی۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا گیا، ان اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر جو زمین پر اللہ کا بنا وہ وہی گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ یہ بہت عظیم ہے، دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں سب سے عظیم مسجد یہی بیت اللہ ہے۔ یہ بیت اللہ کا ایک اور منظر ہے، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمارت درمیان میں ہے، گرد و نواح میں شرطے کھڑے ہوتے ہیں، اور بالکل آپ رائٹ سائڈ پر دیکھیں ایک کرو بنا ہوا ہے، یہ وہاں کا حتیم ہے۔ جو شخص یہاں حتیم میں نماز پڑھتا ہے تو یوں سمجھ لے کہ وہ بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے۔ میلین اخضرین، ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے سبز لائٹس ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ سبز لائٹس ہیں، یہ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سبز لائٹس ہیں، یہاں سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لوگ چلنے والے ہیں، تو ان کو بس سبز لائٹس پر جب جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں سے ہم نے تیز رفتار کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ لائٹس یہاں تک آتی ہیں، پیچھے سے بھی ہیں، اور یہاں ان کا اینڈ ہے، یہاں تک جب پہنچ جائے انسان تو پھر آہستہ رفتار سے وہاں چلے۔ یہ غار ہیرا ہے، مکہ مکرمہ کے قریب واقع پہاڑ ہے، جبل نور، اس میں غار ہے، اس کا نام غار ہیرا ہے، اور یہاں پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ غار پہاڑ کے اندر نہیں ہے بلکہ اس کے پہلو میں تقریباً خیمے کی شکل میں اور ذرا باہر کو ہٹ کر ہے، تقریباً آدھا میٹر موٹے، پونے 2 میٹر چوڑے اور 3-4 میٹر لمبے چٹانی تختے پہاڑ کے ساتھ اس طرح ٹکے ہوئے ہیں کہ وہ ایک ٹرائی اینگل سی بن جاتی ہے۔ غار کا رخ ایسا ہے کہ سارا دن اس میں سورج نہیں جھانک سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ چند دن کی خوراک اور زاد رہ لے کر جبل نور آتے اور اس غار میں رہ کر آپ غور و فکر اور عبادت فرماتے۔ یہیں حضرت جبریل علیہ السلام جو فرشتہ ہیں اللہ کی طرف سے، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہاں آپ کو پہلی وحی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ وحی آپ کو آ کر پیش کی، اور حضور علیہ السلام آخری پیغمبر کے طور پر مبعوث ہوئے۔ ایک زیارت ہے جسے غار ثور کہتے ہیں۔ غار ثور مکہ معظمہ میں دائیں جانب، مکہ معظمہ کے دائیں جانب 3 میل کے فاصلے پر ثور نامی پہاڑ میں واقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جب ہجرت کی تو 3 دن اس غار میں قیام فرمایا۔ قرآن کریم میں جس غار کا ذکر ہے وہ یہی غار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو اس میں تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ اس غار پر بھی دیکھیں، یہ آیت یہاں پر بھی کسی نے لکھ دی ہے۔ تو اس واقعہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ غار کا جو منہ ہے اتنا تنگ ہے کہ کوئی انسان بمشکل لیٹ کر اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ جب اس غار میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر ہجرت کے دن آئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پہلے غار کو صاف کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں تشریف لے گئے۔ غار کے دہانے پر مکڑیوں نے جالا تانا تھا۔ جب مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو پاؤں کے نشان شناس تھے وہاں جب پہنچ آئے تو غار کے منہ پر پہنچ گئے، لیکن اللہ کے حکم سے وہاں ایک مکڑی نے جالا جب تان دیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ غار ہی کی طرف آئے ہیں، لیکن لوگوں نے ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر وہ غار میں آتے تو تازہ مکڑی جالا نہیں بنا سکتی تھی۔ تو یہ غار ثور ہے، ایک تاریخی مقام ہے اور اس کو حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ جنت المعلا، معلا یہ عربی نام ہے، مکہ معظمہ کا خاص قبرستان ہے جو جنت البقیع کے بعد
दुनिया का सबसे अफजल तरीन खानदान है। ये काबतुल्लाह से जनूब मशरक की जानिब वाक़ है। इस कब्रिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, सहाबे किराम, ताबईन और औलिया अल्लाह के मज़ारात मुक़द्दसा हैं। ये कब्रिस्तान बैतुल्लाह के मगरबी जानिब तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। आम हाजियों को और मकामी लोगों को भी यहाँ दफन करने की इजाजत है। आप जन्नतुल मुअल्ला में देख रहे हैं हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक। ये कब्र वहीं पर है, इसकी भी इंसान को ज़ियारत करनी चाहिए और वहां पर कुछ पढ़कर हमारी वालिदा साहिबा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहुंचाना चाहिए ईसाले सवाब। यह मस्जिद खीफ है, ये मिना में वाक़ है। इसका तज़किरा मैं पहले कर चुका हूं। ये मिना के खेमे हैं। आपने जब आना है 8 ज़ुल्हिज्जा तो आपने इसी मैदान में आना है और आपके खेमे मुख्तस होंगे। यहां अपने खेमों में सामान भी रखें और यहां आपने क़याम करना है। ये जबल रहमत है, मैदान अरफात में वाक़ई ये पहाड़ है। इस पहाड़ को जबल अरफा भी कहते हैं। वैसे अरफा ऊंची जगह को कहते हैं, क्योंकि ये पहाड़ दीगर पहाड़ों से नुमाया जगह पर वाक़ई है, इसलिए इसका नाम जबल रहमत है। इसका जो डायमीटर है 100 मीटर और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 मीटर है। ये पहाड़ हल्के सब्जी माइल छोटे छोटे पत्थरों और भुरभुरी मिट्टी से बना हुआ है। जबल रहमत पर आप देख रहे होंगे, मैं यहां पर इसको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। ये जगह देख लीजिए, यहां पर एक सफेद जो है वो लौह टाइप लगाई गई है। ये वो जगह है जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी जो थी वो हज्जतुल वदा के मौका पर खड़ी थी। जबल रहमत के चारों तरफ इर्दा गिर्द ये अरफात का मैदान है। मस्जिद मशअर हराम ये मुज़दलिफा में मौजूद है। आप जब मगरिब को आएंगे 9 ज़ुल्हिज्जा के मगरिब को तो यहाँ मशअर हराम है, इसकी भी इंसान ज़ियारत कर ले, बड़ा अहम तारीखी मकाम है। ये हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मंसूब एक मस्जिद है जिसे मस्जिद आयशा भी कहते हैं और ये मक्का मुकरमा के करीब एक मकाम है जिसे मकाम तनईम कहते हैं। ये मस्जिद वहां पर वाक़ है। हाजी साहिबान जब उमरा करते हैं या उमरा करने वाले एक उम्र के बाद दूसरा उमरा करते हैं तो यहां से एहराम बांधते हैं, तो ये इन लोगों का मीकात है। यह मस्जिद नबवी अला साहिब सलात व सलाम है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बनाया था। इसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौज़ अतहर भी मौजूद है। ये मुआजा शरीफ है। मुआजा शरीफ के यहाँ आपने आना है और आपने सलाम पेश करना है। ये जन्नतुल बकी है। जन्नतुल बकी ये मदीना मुनव्वरा में मौजूद एक कब्रिस्तान है। यहाँ असहाब रसूल, अहले बैत रसूल और कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मदफून हैं। बकी उस जगह को कहते हैं जहां जंगली पेड़ पौधे कसरत के साथ पाए जाते हैं और चूंकि जन्नतुल बकी वाला जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान बनने से पहले यहाँ झाड़ झंकार, कांटे और गरकद के पेड़ वगैरह होते थे, इसलिए इस जगह को बकी गरकद भी कहते हैं, यानी औसत के जहां पर पेड़ और औसत दरख्त के जहां पर कुछ पौधे लगे हों। यह कब्रिस्तान मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर मस्जिद नबवी के मशरिक सिमत पर वाक़ है। मस्जिद कुबा तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद है जो मदीना मुनव्वरा से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और जिस बस्ती में वाक़ है उस बस्ती का नाम कुबा था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु रबीउल अव्वल की 8 तारीख 13 नबवी को आप यसरब की इस बैरूनी बस्ती में पहुंचे। 14 दिन आपने यहाँ क़याम फरमाया और उसी दौरान इस मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मस्जिद को मस्जिद तकवा भी कहा जाता है। हुजूर ने यहाँ क़याम भी किया, यहाँ नमाजें भी आपने पढ़ी है। मदीना मुनव्वरा की एक और मस्जिद है, इसे मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं। मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा का एक महल्ला था बनु सलमा। सन 2 हिजरी में इस मस्जिद में
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम रजी अल्लाह अन्हुम को नमाज पढ़ा रहे थे, तो नमाज के दौरान ही आपने अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से काबतुल्लाह की तरफ फेर लिया। ये एक ऐसी नमाज थी कि जिसमें दो किबलों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना जो है वो पेश आया, एक बैतुल्लाह की तरफ और एक बैतुल मुक़द्दस की तरफ। इसलिए इसको मस्जिद क़िबलतैन यानी दो किबलों वाली मस्जिद कहा जाता है। बीर रूमा जिसका तज़किरा हम आगे करेंगे, उसके करीब ये मस्जिद वाक़ है। इसका जो दाखिली हिस्सा है वो कुब्बादार है, कुब्बा बना हुआ है, और इसका जो खारजी हिस्सा है वो मेहराब की शक्ल का है। सुल्तान सुलेमान आजम उस्मानी दौर का खलीफा है, उन्होंने 1543 हिजरी में इस मस्जिद को असर नौ तामीर कराया है, और आज ये मस्जिद उसी शान और शौकत के साथ कायम और दायम है। ये जबल उहुद है। जबल उहुद मदीना मुनव्वरा के शुमाल में एक पहाड़ का नाम है। इस पहाड़ की बुलंदी 3533 फुट है। इस मकाम पर मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों का एक दरमियान में एक लड़ाई पेश आई है। इसको गजवा कहा जाता है उहुद। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की एक रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा जबल उहुद पर चढ़े। आप अलैहिस्सलाम के हमरा हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक और हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हुम थे। पहाड़ हिलने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ पर अपना पांव मारा और फरमाया, ऐ उहुद ठहर जा, ऐ उहुद तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। यानी नबी तो मैं, सिद्दीक हजरत सिद्दीक अकबर, और दो शहीद हजरत उमर और हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु है। और ऐसा ही हुआ जिस तरह हुजूर ने फरमाया था। ये जबल उहुद वो पहाड़ है जिसके मुतालिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जबल उहुदिन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। जबल उहुद को हमसे मोहब्बत है और हमको जबल उहुद से मोहब्बत है। गज़वा उहुद के सब शुहदाए किराम यहीं पर मदफून है। ये बीर रूमा है। बीर रूमा, बीर रूमा ये वो कुआं है जिसे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कुआं भी कहा जाता है, और ये उस कुएं का नाम है जो मदीना का सबसे बड़ा कुआं था। मस्जिद क़िबलतैन से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, मस्जिद नबवी से 3.5 किलोमीटर के फासले पर शिमाल की जानिब वाक़ है। इस कुएं का पानी इंतहाई लजीज, शीरीं और पाकीज़ा है। इसी मुनासबत से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत के मुताबिक इस कुएं को खरीद कर और वक्फ करने पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का जन्नती होना साबित होता है। इसका वाकया अर्ज करके अपनी बात को हम खत्म करना चाहेंगे। मुहाजिरीन मक्का मुकरमा से जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए, यहाँ का पानी उनको पसंद ना आया, पानी शोर था। बनी गिफार से एक शख्स था जिसकी मिल्कियत में एक शीरीं चश्मे का पानी था जिसका नाम बीर रूमा था, और वो उसकी एक मुश्क आधा सा में बेचता था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि चश्मा मेरे हाथ एक चश्मा बहिश्त के एवज बेच डालो, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे बाल बच्चों की माश इसी में है, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। जब यह खबर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु ने सुनी तो उन्होंने मालिक से इस चश्मे को खरीद लिया। हुजूर की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस तरह आपने उस शख्स को चश्मा बहिश्ती अता फरमाने की बशारत दी, अगर मैं यह खरीद कर आपकी खिदमत में अता कर दूं, पेश कर दूं, तो क्या आप मुझे वही बशारत अता फरमाएंगे? हुजूर ने फरमाया हाँ। अर्ज के, या रसूल अल्लाह, मैंने बीर रूमा खरीदा और मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया है। तो ये बीर रूमा है, आजकल ये खुला है, इसकी भी इंसान को ज़ियारत करनी चाहिए। ये मैदान बद्र है जहां पर मुसलमानों की और मुशरिकीन मक्का की लड़ाई हुई। मुसलमान सरफराज हुए कामयाबी के साथ। मदीना मुनव्वरा से 80 मील के फासले पर एक गांव है, इसका नाम बदर था। यहां मेला लगता था। ये कुआं भी वहीं पर था, इसलिए इस कुएं को उसके मालिक बदर के नाम पर बदर रख दिया गया। और यहां पर जो इस्लाम की पहली लड़ाई हुई, यौम अल फुरकान, जिसको जंग बदर का नाम दिया गया, मुसलमानान इस्लाम ने 313 अफराद ने कुफ्फार मक्का के बहुत बड़े 1000 के लश्कर को मात दे दी। इनके पास सिर्फ 2 घोड़े, यानी फौज में सवार सिपाहियों की तादाद 2 है। शमशीरें और तलवारें न होने के बराबर थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की
بہت بڑی مدد اور نصرت کے پیش نظر مسلمانوں نے اس فوج کو شکست دے دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کر دیا۔ تو یہ کچھ زیارات ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا حج کورس آج مکمل ہوا ہے۔ حج کورس کا میں خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، ہم یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کس شخص پر حج فرض ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے نصاب کیا ہے، یہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا۔ نمبر 2، جب حج پر جانے کا ارادہ بن جائے تو انسان اپنی رقم کا انتظام کرے، پاسپورٹ کا انتظام کرے، ویزے کا انتظام کرے۔ نمبر 3، اگر خاتون ہے تو خاتون اپنے کسی محرم کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے اس کے بھی اخراجات کا انتظام کرے۔ نمبر 4، حج پر جانے کے لیے پہلے انسان اس کی پریکٹس شروع کرے، ورزش شروع کرے، چلنا پھرنا شروع کرے۔ نمبر 5، اس کے لیے حج کا مستقل طریقہ سیکھ لے، یہ طے کر لے کہ میں نے حج افراد کرنا ہے، حج قران کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے۔ جو بھی قسم انہوں نے حج کی کرنی ہے اس قسم کو انسان بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر انسان اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی صحیح، اپنے خاندان کے جن افراد سے منہ ماری ہو گئی ہے، جس کا حق دینا ہے، ان کے حق ادا کر لے۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں نماز چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، ان کو ادا کرے۔ کسی کا قرض ہے، امانت ہے، ادا کرے۔ سفر کرے، سفر کرنے کے بعد بیت اللہ کے طریقہ کار ہم نے بتا دیا۔ عمرے کا، تمتع کا ہم نے عرض کیا ہے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام تھا۔ بیت اللہ کا طواف کرے، پہلے احرام باندھے، بیت اللہ کا طواف کرے، 2 رکعت واجب الطواف پڑھے، پھر اس کے بعد سعی کرے، پھر اس کے بعد سر منڈوائے، اس کے بعد احرام کھول دے، اس کا عمرہ ہو گیا۔ حج کے لیے 5 دن ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم نے نقشے کی مدد سے بھی سمجھا دیا۔ 8 ذوالحجہ کو مینا جائے، 9 ذوالحجہ کو عرفہ جائے، 9 کی شام کو مزدلفہ آئے، رات وہیں پر گزارے، 10 کو پھر مینا آئے۔ 10 کے دن 3 اہم کام کرے، رمی کرے، قربانی کرے، اور سر کے بال منڈوائے یا کٹوائے۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے۔ پھر اسی دن کے بعد 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ یہ کنکریاں مارتا رہے، اور اس کے بعد پھر اپنی بلڈنگ پر پرس آ جائے۔ اس کا حج مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بیت اللہ کے زیارت کے بعد جب مدینہ منورہ جائے گا، روز رسول پر حاضری دے، درود و سلام پیش کرے۔ وہاں مختلف زیارات ہیں، اور مکہ مکرمہ میں بھی مختلف زیارات ہیں۔ ان زیارات کو دیکھے، اسلام کی تاریخ اس کے سامنے آ جائے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کس طرح ان مقامات پر ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو حج کورس پڑھایا، آپ حضرات نے بڑے شوق اور ذوق سے اس میں شرکت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے ہمیں بھی بار بار اپنے گھر میں حج کرنے کے لیے بلائے، عمرہ کرنے کے لیے بلائے، روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے بلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ آپ تمام احباب مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بحمد اللہ تعالی مرکز نے اس قسم کے شارٹ کورسز کا بہت زیادہ انتظام کیا ہے۔ ہمارے ہاں نماز کورس ہے، زکوٰۃ کورس ہے، عمرہ کورس ہم نے کرایا، یہ حج کورس ہو رہا ہے، اس طرح دورہ تحقیق المسائل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس قربانی کا مستقل کورس شروع ہو رہا ہے، اور استاذ محترم اس کو پڑھا بھی رہے ہیں۔ آن لائن کورسز میں ہمارے پاس علم دین کورس ہے، عالم کورس ہے، تفسیر القرآن کورس ہے، تعلیم القرآن بچوں کے لیے کورس ہے۔ تو مختلف کورسز بحمد اللہ تعالی ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سے شروع ہیں، اور بحمد اللہ اس سال سے تو ہم نے تخصص فی الافتاح آن لائن وہ بھی شروع کرا دیا، اور تخصص فی العقائد الاسلامیہ کا تیسرا بیچ انشاءاللہ اس سال ہوگا۔ بس آپ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور ہمارے ای مرکز جو ادارہ ہے اسے بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ یہ سارا فیض ہمارے استاذ محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس محمد صاحب دامت برکاتہم کا ہے۔ استاذ محترم کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، اور آپ کے علم و عمل میں ترقی کے لیے آپ تمام احباب دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت استاذ محترم کی تمام مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ ان کا لگایا ہوا پودا مرکز اہل سنت والجماعت جو پوری دنیا میں کارہائے نمایاں سر انجام دے رہا ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या दल जलाल वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह, हमने हज कोर्स पढ़ाया है, शुरका ने पढ़ा है, या अल्लाह हम सब का पढ़ना पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह, ये कोर्स ई मरकज़ के तहत हुआ है, या अल्लाह ई मरकज़ के इस कोर्स में और बाकी तमाम कोर्सेज में या अल्लाह तरक्की अता फरमा। जो शुरका इन कोर्सों में शरीक हैं, या अल्लाह उनके इल्म में, अमल में, हाफ़िज़ ज़हानत में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, इस पूरे के पूरे काम के पीछे जो मेहनत, दुआएं, तगोदू, जिद्दोजहद और कोशिश है, वो हम सब के उस्ताद मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामत बरकातुहू की है। उस्ताद मोहतरम की इन तमाम मसाई को कबूल फरमा। उस्ताद मोहतरम के इल्म में, अमल में, तकवा में, तहारत में बरकत अता फरमा। उस्ताद मोहतरम की फ़िक्र को या अल्लाह चार दांगे आलम में आम फरमा। आपके फैज़ को चार दांगे आलम में आम फरमा। आपने जो अकायद हक्का और सही नज़रियात और सही आमाल, अदिल्ला और दलील के साथ आपने दुनिया में फैलाने का जो अज़म किया है, या अल्लाह इस अज़म को पाए तकमील तक पहुंचा। जिस इस काम में जो रुकावटें हों, उन रुकावटों को दूर फरमा। जो इस काम में मुआवनत चाहिए, या अल्लाह खजाना गैब से अता फरमा। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए अफराद की या अल्लाह वसअत अता फरमा। या अल्लाह, जो रुकावटें माली तौर पर परेशानी हों, उनको भी दूर फरमा। मरकज़ आल सुन्नत वल जमात की तामीर का काम आखिरी मराहिल में है, या अल्लाह इसे भी अपने फजलो करम से पाए तकमील तक पहुंचा। मरकज़ आल सुन्नत वल जमात में तलबे किराम बिहम्दिल्लाह ताला अपनी तालीम में शरीक हैं। या अल्लाह, मरकज़ के असातिज़ा को इनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा। इन तलबा के भी इल्म व अमल में, ज़हानत में, तकवा तहारत में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, जो शुरका इसमें शरीक हैं इस कोर्स की बरकत से, या अल्लाह इनको भी हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। या अल्लाह, इस कोर्स की बरकत से या अल्लाह इनको भी उम्रे के सफर अता फरमा। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इनको भी नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप तमाम अहबाब को भी इजाज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।